जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 557th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today, as expected, Nifty and Bank Nifty they opened big gap down, and rest of the day nothing much happened. So we will see what's the roadmap ahead for these markets. Well, in yesterday's session, I have clearly outlined the roadmap for coming few days, and more or less I think market is going to follow that. So let us start today's session and have a updated look. And good evening to all those who have joined just now. DLF was awesome trade, booked 19 points. DLF, by the way, gave double than this. DLF short was at 400, and today I think I saw 363. So DLF gave almost double of what you are saying. So let us start. Before I start, just one request कि दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप्स और टेलीग्राम जो फ्री ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिमेन अपडेटेड वेन एवर वी पुट दी वीडियोज़. आपको जो है नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए. And those who are interesting to join the next upcoming training, which is my last training for the foreseeable future, especially for at least next 3 months. I'm not going to take any more training, so this is your last opportunity to join. It's on May 7th and 8th, and you will be added in the Telegram group. And from 15th of May we will be kickstarting our own trading room, and all these members will be added over there. So let's start today's session. So right now I can see US market is again down. So US market is back to the previous lows that were seen in March. So US market जो है पूरा gains जो है छोड़ चुका है, and right now US market is definitely looking bearish. Although I feel that these lows will be protected. हम इसमें शॉर्ट साइड में रहे हैं और बहुत ही परफेक्शन के साथ ये पूरा मूव जो है हमने इसको आपको गाइड किया था. So US market is bearish. Other European markets, the French market, that is also bearish. Few people thought that post the election result, French markets will go up, but sorry, जो technicals है market technicals को follow करेगा. Market is a discounting mechanism, so all the news and everything is already discounted. So French market is sitting on a time bomb. This is the last support, and the French equity markets, once these supports are out, then they will again collapse all the way to March lows. इसी तरीके से जो बाकी जो ग्लोबल इंडेक्स हैं, जैसे इमर्जिंग मार्केट ETF है, ट्रेडिंग एट 42, बिलो 42, दैट इज वेरी वेरी बेरिश. एंड if I go by the this index, तो निफ्टी को कम से कम यहाँ पे 16,000 होना चाहिए. निफ्टी इज स्टिल 1,000 points higher, but you may never know. So this index has been bearish since last 2 years, and we are seeing almost March lows being taken out here. So equity market जो है bearish है दोस्तों, और हमने जो है आपको सबके सामने जो है अलर्ट रखा है, सबको जो है गाइड किया है इसमें, and I hope all of you have benefited. Now let us talk about currencies, क्योंकि आज भी यूएस डॉलर ऊपर है, and यूएस डॉलर is going relentless, and यूएस डॉलर has very soon reach the resistance, the next resistance level that I spoke about in yesterday's session. So यूएस मार्केट यूएस डॉलर जो है आप देख सकते हो कि अपने लॉन्ग टर्म जो है एक रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट आ चुका है. सम मोर अपसाइड इज लेफ्ट, बट इट्स प्रीटी मच reaching over that zone, and this is where some trouble should come in the US dollar. Today already I can see three triple tops here on the intraday charts, although these will most likely be taken out to create some fresh high, thereby reaching to these levels on the daily chart. But US dollar जो है इस समय strong है, and let us see how it rejects from these resistance level. अगर US डॉलर में एक peak out turn होता है आने वाले दिनों में, so that will trigger a good bounce and a good bottom for the equity markets. और यही चीज़ मैंने कल भी explain किया था कि US डॉलर जो है अभी थोड़ा और बुलिश है, सो दैट विल गो हायर. इक्विटीज जो है ड्रॉप करेंगी, एंड देन यूएस डॉलर शुड स्टार्ट टू रिवर्स, एंड इक्विटीज जो है फिर ये बुलिश हो जाएंगे. सो ये थीम के साथ जो है हम इस समय बाजार में चल रहे हैं. सो US dollar has definitely put some pressure on the USD INR, and today USD INR opened gap up above 76.5 level, and it tried to reach towards the 77.8 level,
and as usual RBI is still not allowing or not giving a free hand, although I believe tomorrow USD INR will hit the 77 mark and hit a new all-time high. I'm pretty sure that USD INR जो है new all-time high hit करने वाला है. Now, if I look at the USD INR chart, uh, two things are very much possible, and that is if the USD INR really takes off, I think it is not going to stop below 80. Okay, so either RBI doesn't allow it to uh, break out, or if it breaks out, then it will be a big breakout on the USD INR. सो यूएसडी एनआर जो है ये अभी भी बुलिश है और 77 के ऊपर जो है इसके टारगेट्स हैं 78 की तरफ. बाकी आज ब्रिटिश पाउंड ने जो है पूरी तरीके से जो है इसको ब्रेक कर दिया था, जो फ्राइडे को ब्रीच हुआ था. अगेन इट कंटिन्यूड टुडे. इवन द यूरो हैज ब्रोकन. सो यूएस डॉलर इज ट्रिगरिंग ऑल दीज ब्रेकडाउन्स इन द अदर करेंसीज मार्केट. तो जो भी करेंसी पे मैंने कल जो लेवल्स बताए हैं, मोर और लेस दोज लेवल्स आर गोइंग टू वर्क. एक्सेप्शन है कि जीबीपी आईएनआर, क्योंकि ये इसने आखिरी जो 98.25 का सपोर्ट था, दैट इज आल्सो being taken down. So GBP INR जो है now you are looking at 97.25 to 98.25 as a trading level for next sessions. 98.25 अब आपका मेन लेवल है. इसके ऊपर ये अगर जाने लगा तो फिर ये एक बेस बन जाएगा, एंड देन we will open the doors for 99.25 and 100.25, कुछ इस तरीके से ये चलेंगे. लेट्स टॉक अबाउट कमोडिटीज मार्केट. सो कमोडिटीज मार्केट में गोल्ड और सिल्वर पूरी तरीके से वाइट वॉश हो चुके हैं. कल मैंने आपको बताया भी था कि आई एम वेरी बेरिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर. आई थिंक दे हैव मेड अ टॉप, दे हैव मेड अ मीडियम टर्म टॉप इफ नॉट लॉन्ग टर्म टॉप. सो सिल्वर आप देख सकते हैं कि 1400 पॉइंट डाउन है. गोल्ड आज लगभग 900 पॉइंट डाउन है. वेरी वेरी बेरिश. एंड क्रूड ऑयल अगेन 400 पॉइंट क्रूड ऑयल डाउन है. नेचुरल गैस इंट्राडे 20-25 पॉइंट डाउन था, अभी इसमें रिकवरी आई है. कॉपर हैज गिवन अ ब्रेकडाउन, सो मेटल्स हैव गिवन अ ब्रेकडाउन. सो ऑल दीज कमोडिटीज दे आर शैटरिंग. So the US dollar single-handedly it is breaking all these commodities and the equities market. So that is the power of US dollar. Let's talk about crude oil. क्रूड ऑयल में सपोर्ट जोन कल हमने डिस्कस किया था कि 7750 7800 ये आखिरी सपोर्ट है, और आज का हाई जो है ये 7747 है, एंड इट हैज ब्रोकन डाउन. नाउ क्रूड ऑयल में इसलिए मैं अभी कोई ट्रेड यहाँ पे एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज I wanted to make some bottom or make some top, and I want to play for the next big round. So that is why there is no trade from my side in crude oil. Overall, I think it will still on MCX because of the USD INR effect. I think it will manage to hold this 7300 level, make a triple bottom, and again start to rise to some extent. So we will see. अभी कोई जल्दी नहीं है, and जब तक USD INR 7750 यानी आज का जो ओपनिंग लेवल है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, इट इज बेरिश एंड इट कैन वेरी इजिली गो टुवर्ड्स दी 7151 लेवल. बट कोई ट्रेड मेरी तरफ से अभी नहीं है. सो कमोडिटीज में कुछ खास अपडेट नहीं है. लेट अस हैव अ लुक एट द बिटकॉइन एंड इथेरियम. सो बिटकॉइन में आप देख सकते हैं अगेन टुडे इट फ्लश थ्रू दीज लेवल्स एंड अगेन इट इज just hovering around here. So don't do anything in Bitcoin and Ethereum. Very soon we will see a very good bottom sort of structure being made. Chaliye, let us talk about the Nifty and Bank Nifty because that is more pertinent right now. So Nifty opened with a gap down opening. So Nifty or Bank Nifty के shorts थे, and those shorts were covered in the morning pretty much 16,925 के आसपास के लेवल्स पे. रेस्ट ऑफ द डे में इसमें कुछ खास नहीं हुआ. बैंक निफ्टी में भी रेस्ट ऑफ द डे नथिंग मच हैपेंड, साइडवेज एक्शन था. बट दिस मार्केट it's very interesting right now क्योंकि let us have a look at the daily chart. So if I open the chart of Nifty daily chart, the first thing that should strike you is this market has made a head and shoulder pattern in this leg. So this is one head and shoulder pattern over here, right? सो ये जो स्ट्रक्चर है ये अगर क्रैक करता है, ठीक है, ये अगर क्रैक करता है, और ये क्रैक करने के लिए इसे जो है 16,880 के नीचे का क्लोज देना पड़ेगा. सो ये जब स्ट्रक्चर अगर कन्विंसिंगली ये अगर क्रैक करता है, सो यू कैन इमेजिन दैट विल डेफिनेटली टेक द मार्केट टुवर्ड्स दिस बॉटम दैट वाज मेड लास्ट ईयर. ठीक है, and this is most likely to happen.
But there is a caveat over here. The caveat is that today, if you look, Nifty Bank Nifty uh, did not become too bearish as it was expected. जैसे यूएस मार्केट को देखिए, फ्राइडे को कितनी सेल ऑफ थी, आज फ्यूचर्स मार्केट भी जो है बेरिश था, बट उसके हिसाब से आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा आज बेरिशनेस हुआ नहीं। मे बी बिकॉज गैप डाउन ही एक लगभग 180 पॉइंट का था निफ्टी पे, सो गैप डाउन की वजह से शायद वो हो गया। बट वॉट एवर द रीजन इज, द पॉइंट इज that this risk will remain as of now. This risk will be there, and but the problem is because these global markets, they are too much oversold. यहाँ पे अगर हम अगर आप शॉर्ट करते हो तो एक तो ये रिस्क है कि यू कैन बी शॉर्ट ट्रैप्ड, राइट, बिकॉज ये एक सपोर्ट है 16,880 16,900, ये एक सपोर्ट है। ओके, ट्रेंड डाउन है, इसमें कोई अभी तक डाउट नहीं है, और मैंने आपको पहले भी कहा जब तक हम इसके वीकली मॉब लेवल के नीचे हैं मार्केट इज बेरिश। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, वी माइट ट्रेड इन दिस एरिया, राइट, बट द ट्रेंड इज बेरिश एज ऑफ नाउ। ट्रेंड बुलिश होने के लिए मार्केट नीड्स टू डू लॉट ऑफ वर्क एंड मार्केट नीड्स टू क्रॉस दिस एरिया टू चेंज द ट्रेंड। तो ट्रेंड तो बेरिश है, तो ऐसे सिचुएशन में जब जब कोई मीनिंगफुल रैली हो, आपको ऊपर ऊपर में शॉर्ट करना चाहिए, नीचे में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। नीचे में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो ये अजम्पशन लेके जाओ कि यू कैन बी बेयर ट्रैप, मार्केट तुरंत किसी भी न्यूज में या कोई भी एक पॉजिटिविटी आ गई तो मार्केट कैन बाउंस बैक एंड यू कैन मेक लॉसेस। तो नंबर वन, आइदर गो विथ सम पुट्स एक्सेट्रा, लिमिटेड रिस्क के साथ खेलो। दूसरी बात कि आफ्टर टुडेज प्राइस एक्शन, ठीक है, कल का सेशन जो है ना ये थोड़ा सिंपल हो चुका है। कल का सेशन इसलिए सिंपल हो चुका है बिकॉज टुमारो इफ वी ओपन गैप अप, ठीक है, अगर हम ऊपर खुलते हैं तो ट्रेंड जो है थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा एंड मार्केट वुड लाइक टू गो एंड फिल टुडेज बॉटम ओवर देयर। अगेन मार्केट कैन फेस दिस रेजिस्टेंस, यानी अगर आप एक कैंडल स्टिक यहाँ पे आप प्लॉट करोगे, सपोज कल मार्केट ऊपर खुलता है इस तरीके से, तो ये कैंडल स्टिक अगेन इट विल फेस रेजिस्टेंस एट दिस गैप एरिया and the channel and the trend line resistance, just like it happened here, right? And post that the market can probably start to drop. सो कल का सेशन तो प्ले करना आसान है एंड पोजिशनली कुछ इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में हो। ठीक है, सो कल का सेशन इजी है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है एंड कल के सेशन के बाद कल किस तरीके से मार्केट क्लोज करता है उसके हिसाब से यू विल कैरी द पोजिशनल ट्रेड्स, और आइदर जस्ट प्ले टुमारो सेशन, बुक इट, एंड वेडनेसडे को हम देखते हैं कि फ्रेश क्या करना है, बिकॉज दीज डेज निफ्टी का रेंज इतना ज़्यादा है कि आप इंट्राडे भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक कॉन्टेक्चुअल अपडेट है। बाकी अगर हम वीकली चार्ट्स को देखें तो कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेरी रेयरली यू विल सी 3 वीकली bearish candles, right, since the covid bottom. Very rarely you will see 3 bearish candles weekly time frame pe, and whenever we have seen 3 bearish candle, it has marked a meaningful bottom, and post that we have seen huge rallies. So this was one example over here, this was the second example, and since then बहुत ही rare हुआ है। इनफैक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कब हमने 3 bearish candle बनाए हैं। So considering all these things, we are at a very good support zone, but I think कि market अगर थोड़ा पैनिक करके फिर अगर ऊपर बढ़ना शुरू हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा मार्केट के लिए, बिकॉज दैट विल फ्लश आउट ऑल द वीक हैंड्स। एक जो वॉश एंड रिंस जो हम कहते हैं टेक्निकल्स में, वो हो जाएगा, एंड देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो बाउंस आएगा दैट विल बी एटलीस्ट टिल 18,000 लेवल। तो आपको ये बहुत ही अच्छा एक लगभग 1300-1400 पॉइंट की एक रैली यहाँ पे मिल जाएगी, एंड पोस्ट दैट वी विल सी व्हाट इज टू बी डन। ओके, दिस कैन बिकम इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट कंसिडर दीज थिंग्स बिकॉज इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर सपोर्ट पे बनता है, नीचे बनता है, तो ज़्यादा रिलायबल होता है रादर देन बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर। आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन दिस लेग, ये लेग हमारा कंप्लीट हो रहा है एंड देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस लेग, उसके बाद हम फ्रेश देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं कि कल के लेवल्स पे। कल का जो इंट्राडे मॉब लेवल है दैट इज वेरी इजी। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग अबव दीज लेवल्स, ठीक है, दीज आर द रेजिस्टेंसेस। आज का ये इंट्राडे हाई था, सो 17,050 लेवल, दिस इज द लेवल टू वॉच। इफ टुमारो द मॉब लेवल फॉर टुमारो सेशन विल बी 17,050,
right? So about this we are definitely bullish, and first target will be 17,175, and intraday second target should be 17,275. Okay, now these are the pending gaps. तो यहाँ पे तो ये डेफिनेटली 17,175 इसको तो टेस्ट करेगा, मे बी थोड़ा बहुत और ऊपर भी ट्रिप लगाए समवेयर नियर 275 के आसपास। तो मोस्टली दोनों टारगेट्स जो हैं ये आ सकते हैं, जिसमें से 175 तो बहुत ही श्योर है कि ये आएगा, बिकॉज देयर इज अ पेंडिंग गैप। Now, if tomorrow, now what if tomorrow markets open flat or markets open gap down below today's bottom? ठीक है, gap down below today's low. इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट डेफिनेटली ना एक बड़ा क्रैक करेगा। क्यों क्रैक करेगा ये मैं भी समझाता हूँ। सो सबसे पहला टारगेट क्या हो जाएगा, टू टेक आउट दीज लोज। सो 16,825 ये फर्स्ट टारगेट, एंड 16,666 ये आपका दूसरा टारगेट। आई विल गो विद ओनली दीज टू टारगेट्स। थोड़ा पैनिक हुआ तो मे बी 16,600 को भी थोड़ा एक स्ट्राइक प्राइस होने के हिसाब से इसे मार्केट टेस्ट कर देगा। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट इफ देयर इज अ गैप डाउन बिलो टुडेज बॉटम, मार्केट शुड ड्रॉप बिग टाइम। अच्छा, एक और बात, ऐसा जब सिचुएशन होता है दैट यू हैव अ पूरा साइडवेज डे, राइट, गैप डाउन ओपनिंग साइडवेज, तो नेक्स्ट डे जो है ना, मार्केट अगर ऐसे स्ट्रक्चर के बाद गैप अप करता है तो वो पहले ऊपर के सारे टारगेट्स कंप्लीट करेगा। दिस आई एम टेलिंग यू टुडे इटसेल्फ, ठीक है। Whenever you have a gap down opening and there is a small range throughout the day, sideways type of a range in a small range, next day if there is a gap up, market would go and fill this gap over here. Secondly, if there is a gap down, then it will most likely extend the range, क्योंकि आज का जो है ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन था, तो कल रेंज एक्सपेंशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। और सपोज अगर मार्केट को बेयर ट्रैप बनाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्केट को अगर लोगों को बेयर ट्रैप करना है तो ये क्या करेगा कि गैप डाउन के बाद, ठीक है, इट विल बाउंस वेरी स्ट्रांगली एंड एंटर बैक इन दिस रेंज। तो इसे हम फेलियर कहते हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है, ठीक है, दैट देयर वाज अ स्मॉल रेंज, नेक्स्ट डे यू ओपन गैप डाउन, यू गो डाउन एंड इमीडिएटली बाउंस बैक, दैट इज a sort of a bear trap in the making, and it should strike you that shorting अब नहीं करना चाहिए। now it's a time to go long, and you will notice जो VWAP है वो फ्यूचर्स प्राइस के नीचे चलता है। सो ऑल दीज आर टेक्निकल प्राइस एक्शन स्टफ जो कि हम यहाँ पे सब ट्रेनिंग में जो है कवर करते हैं। यू शुड नो द बेसिक स्टफ ऑफ मार्केट, एंड तभी जो है आपको बेनिफिट हो। सो दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी फ्रंट। कल की ओपनिंग जिस साइड होगी मार्केट उस साइड जो है चलेगा। एंड इफ आई लुक ऑन दी line chart, we are sitting at a double bottom, so this is precisely the reason why I said that if tomorrow there is a gap down opening, we should start to go down at least till 16,650 16,600 level, क्योंकि अगला सपोर्ट वहीं पे है, ठीक है। So this was the inverse head and shoulder pattern that we broke last time, and we went all the way till 18,100 level, and again we are almost back to that level, ठीक है। So लाइन चार्ट को सीखो, लाइन चार्ट जो है बहुत ही काम की चीज़ है। So that's about it. चलिए, let us talk about Nifty and then we will take some stock queries. So Bank Nifty में situation क्या है? See, Bank Nifty today was quite resilient, and मुझे लगा था कि आज Bank Nifty at least एक और बार अपना intraday bottom test करेगा। So Bank Nifty has taken support. Now this is very nice. Overall trend down hai, and even if any rally comes, this should face resistance, and finally we should go till 35,000 level. Now Bank Nifty में ध्यान दीजिएगा कि जो weekly mob level मैंने बताया है, that is most important. Till that is not crossed, this is going down towards 35,000 bare minimum. अगर USD INR भी शूट अप कर देता है तो फिर 34,000 आना बहुत ही आराम से आ जाएगा, ठीक है। बट इट शुड नॉट क्रॉस दिस। इफ इट क्रॉसेस दिस, then I will not be bearish in the Bank Nifty, then I will look for buy on dips, because in that case ये 38,000 के आसपास फिर जाएगा, ठीक है। तो अब कल की सिचुएशन किस तरीके से होगी, let us open the intraday chart. So it's very simple that tomorrow again same logic, if Bank Nifty opens gap up, then it's bullish. सो कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी में मैं समझता हूँ 36,180 36,200 ये आपके लेवल्स होने चाहिए। ये एक रेफरेंस लेवल होना चाहिए, मेक और ब्रेक लेवल 36,200 लेवल। अबव दिस इट इज बुलिश, and I think it should test the pending gap area over here, which is say 36,800 level, ठीक है। सो एक ही टारगेट के साथ में जाऊंगा, and on the lower side
If there is a gap down opening, then gone. And I think Bank Nifty is going bare minimum 35,400 as first target, and possibly 35,000 as a second target. So Bank Nifty is very very simple. We have made a bottom, and then we have made a flag sort of structure. But this flag is a part of a downtrend, right? So if there is a gap down opening, this will move lower. If there is a gap up opening, it will stage a gap filling move, thereby making this 1 2 3 pattern like this. Chaliye, that's all from my side. And we can take some stock queries, and then we can wind up the session. If there are no stock queries, I can wind up the session right now. In the meantime, जितने लोग अभी जुड़े हैं, नमस्कार, good evening. And next training is scheduled on May 7th and 8th. If you are interested, you can join. Bajaj Auto is the first query I can see. Many people are, badly thrashed in this market, and probably that's because you don't follow us on a regular basis. अगर आप follow कर रहे होते तो आप कहीं भी नहीं फंसते. So Bajaj Auto right now, it's in no man's land. There's a good support at 3580. So no trade from my side because there's no structure, nothing over here. अगर आप long हैं तो 3550 आपका stop loss होना चाहिए. PVR पे view चाहिए. So PVR and all these, cinema and Bollywood and all, I'm perma bear on all these counters. Any up move must be sold. So PVR is no exception. PVR में यहाँ पे देखो, ये long term resistance आया था, ये जो green line है. So after this spike, you see कितना struggle इसे face करना पड़ा. So जब when you have such a structure ना, it's fantastic. ये जो spike up होता है, that shows that all the early bears are out, and then it's making a triangle. और ये triangle जैसे ही नीचे trigger हो, आपको यहाँ पे short कर देना चाहिए. This is the place to short. ये आपका stop loss होगा, ये आपका अगला target है. ठीक है. So PVR is bearish दोस्त. मुझे लगता है PVR अभी जो है थोड़ा और नीचे आना चाहिए. टाटा स्टील बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं. पूरा डायग्राम ड्रॉ करके मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें दो चीज़ें हैं. नंबर वन, अगर इसे तुरंत ऊपर जाना है तो इट शुड ओपन विद अ गैप अप, और नहीं जा रहा है तो फिर इसमें से निकल जाओ. नीचे आएगा तो बाय करेंगे 200 डीए में. सारा चीज़ लास्ट वीक ही मैंने इसको जो है एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे ये भी मैंने बताया था कि राइजिंग वेज स्ट्रक्चर है, राइजिंग वेज जो है टूट चुका है, देन अगेन इसका बैक टेस्टिंग हुआ. सो वेरी वेरी सिंपल प्राइस एक्शन है. सो टाटा स्टील एज ऑफ नाउ, इसमें अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो लेट्स वेट. अगर आपको ये 1170 पे मिलता है तो कैश में यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देना. दीज बॉटम्स आर क्वाइट क्रेडिबल, एंड आई थिंक टाटा स्टील शुड hold this bottom, and later on it should start a bounce. Now keep in mind कि metals में चाइना में जो कोविड लॉकडाउन वगैरह हुआ है, उसके वजह से metals की डिमांड एंड metal market जो है ना काफ़ी bearish हो चुका है. If you see even on MCX, you see these copper, nickel, aluminum, they have all been thrashed. ठीक है. So इसलिए metals में जो है जल्दबाजी जो है नहीं करनी चाहिए आपको. And one more thing I say so many times कि जब भी आप एक हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको किसी भी ट्रेड में फंसने की ज़रूरत नहीं है. सपोज यू हैव बॉट हियर एंड यू आर सीइंग दिस इज अ मैसिव सप्लाई जोन. ठीक है. एक दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो, बट देखते मत रहो ना. अगर यहाँ पे नहीं वो क्रॉस कर रहा है तो एटलीस्ट एक प्रॉफिट बुक करो. ओके, एक प्रॉफिट बुक करो. अगर जब डिप होता है तो वापस से आप बाय कर सकते हो. इफ यू कीप सिटिंग थिंकिंग दैट देयर विल बी अ वर्टिकल बुर्ज खलीफा रैली एवरी नाउ एंड देन, सो बहुत स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता. Market trends only 25% of the time. ओके. सो आईटीसी एक बार चेक करते हैं कि कोई बोल रहा है कि वो क्या हो गया है, 280 पे फंस गया. तो 280 पे क्यों फंसे? 280 पे तो प्रॉफिट बुकिंग करना था ना. करेक्ट. 280 पे प्रॉफिट बुक करना था और करेक्शन पे वापस बाय कर. मैंने तो वापस से आईटीसी बाय कराया. ठीक है. सो वी आर ऑलरेडी फ्रेश बायर्स इन आईटीसी. So we are expecting again 295, 300 and 320 as the second target. Deepak Fertilizers. Analysis पहले समझो, फिर उसके बाद काम करो. बिना समझे काम मत करो. दीपक फर्टिलाइजर राइट नाउ प्रॉफिट बुकिंग करिए. ठीक है. बिकॉज आई थिंक इसने
6 से 7 सेशन यहाँ पे स्पेंड कर दिया है और कुछ हो नहीं रहा है, सो जस्ट प्रॉफिट बुक। नेक्स्ट राउंड में इट शुड गो 800 के आसपास। पॉली कैब, पॉली कैब, सी पॉली कैब, आई थिंक पॉली कैब को थोड़ा होल्ड करो, गिव इट सम टाइम, बट यस स्टॉप लॉस आपका ये बॉटम होगा, 2200 का आपका स्टॉप लॉस होगा। आईजीएल में अभी कोई ट्रेड नहीं है। आईजीएल का भी लॉन्ग टर्म एक्सप्लेनेशन में काफ़ी पहले दे चुका हूँ। सो आईजीएल में अभी कोई ट्रेड नहीं है। दीज आर ऑल बेरिश काउंटर्स राइट नाउ, दे विल बिकम बुलिश, बट अभी नहीं, इनको बहुत टाइम अभी है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इसके लेवल्स बड़े ही ऑब्वियस हैं, पहले इसकी पूरी कहानी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ब्रिटानिया, ये देखो रेजिस्टेंस है 3400 पे, ठीक है। ये सब कॉमन सेंस वाली चीज़ है यार, ये सब चार्ट्स तो एकदम बच्चों वाली चार्ट्स है। 34 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, 3000 आता है देन ये करो, बाय करो। 3000 पे ब्रिटानिया जो है यू शुड बाय, कीप 100-200 पॉइंट स्टॉप लॉस इन कैश। अदानी विल्मर ऑल्सो explained yesterday, Adani Wilmar should go that 840 level, right? 840 कल मैंने बताया था, आज 765 हो चुका है, सो 840 शुड कम। VST tillers, tractors. Let us see. Okay, so this chart looks good to me. Okay, it is really very nice chart, I would say. It has all the ingredients to be a good trade. So I think very interesting chart over here, and you should definitely take a bet uh, on this chart. So the story is something like this कि यहाँ पे किसी ने बड़ा पैसा पंप किया है, okay, and then it is under sideways कंसोलिडेशन, काफ़ी महीनों का कंसोलिडेशन। आई वुड सजेस्ट ये स्टॉक को बाई किया जाए, कोई भी करेक्शन आता है तो आप इसे जो है, कोई भी डिप आता है तो आप बाई करिए, बट स्टॉप लॉस ये 2300-2400 ये आपका स्ट्रक्चर स्टॉप लॉस है। बेसिकली व्हाट इज द आइडिया इज दैट if this stock has bull trend remaining, then what should happen is these bottoms will be held, and we should see a breakout coming out in next few weeks, few months. Now once this breaks out, and without breaking this, it can stage a huge rally, and then at least it should go 3500 plus say 10 or 15%, which adds up to 4000 yani 4000 tak. So if you can get this stock at 2500, 2600, you are looking at a more than 50%, almost 70-80% profit expectation. So it's a good chart, and I really like the structure and everything. Fantastic, very nice. VST dealers, SRF Limited, SRF, ठीक है। तो जितने लोग लास्ट ट्रेनिंग में थे उनको मैंने बताया था कि ये स्टॉक बेरिश है आने वाले दिनों में, एंड व्हाई दिस स्टॉक शुड गो ऑल द वे टिल 2250, और वहां से जहां से मैंने बताया था स्टॉक 250 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है। सो व्हाई आई वाज बेरिश ऑन SRF, जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग अटेंड किए, आपको पता है इट्स वेरी वेरी सिंपल। यू कैन सी कि कौन सा टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है, you can see how it reached that top, right? And then you know everything, जिनको भी थोड़ा भी ट्रेनिंग का चीज़ याद है, आपको पता है कि इसे कैसे डील करना है, so it's very easy, ठीक है। So SRF is bearish, and SRF you can expect some lower levels to come. It might give a bounce back 25-50 वगैरह। अगर आप फंसे हैं तो इसमें से निकलिए। सी जो लोग भी स्टॉक मार्केट में फंस रहे हो ना, ठीक है, मैं क्या बताऊं, बच के रहना। अभी तो बच जाओगे, बट फ्यूचर में बहुत बुरा फंसोगे। सो आइदर लर्न, आइदर डू वॉट एवर इट टेक्स, बट फंसो नहीं स्टॉक्स में, आई एम टेलिंग यू, फंसो नहीं। ये हेवल्स, ओके, सो हेवल्स आई थिंक यू शुड डू प्रॉफिट बुकिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज सिटिंग एट प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल, सो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इनफैक्ट हेवल्स में
जो मैंने यहाँ लॉन्ग सजेस्ट किया था, इसका टारगेट ये कब का हो चुका है, यही इसकी टारगेट थी 1300 के आसपास, 4 दिन पहले ही हो चुका है. सो जस्ट एग्जिट, ओके, बिफोर यू एग्जिट, बिफोर इट starts to fall, so don't take chance. ठीक है. अदानी पावर, ओके. पुष्पा झुकेगा नहीं फाइनली, पुष्पा कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, कौन है, कौन पुष्पा है यहाँ पे, क्यों झुकना है उसे. ट्रेंड, सी अगेन न्यू हाई स्ट्रक्चर है, निकलो. ठीक है. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. Let me do the postmortem of this stock. Triple top, correct? First, second, third. Then we got a breakout on a high volume. So मेरी टेक्निकल्स क्या कहती है कि जब भी ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम पे होता है निकल जाना चाहिए. ठीक है. और बाकी लोगों की टेक्निकल्स क्या कहती है कि जब ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम पे होता है तो यू शुड बाय. करेक्ट. ठीक है. सो बाकियों का फॉलो करो और फंसते रहो, मेरा फॉलो करो और सक्सेस पाते रहो. सो व्हाट हैपेंड लेटर ऑन. See, the story lies here. What happened here? There was a consolidation. ठीक है. Pennant. So pennant is a bullish pattern. Market should go up. Market went up. But look, the incremental high. Hardly incremental high कुछ था. Correct? बस यहीं पे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओगे कि यहीं पे मामला गड़बड़ हो चुका है. ठीक है. And then what happens? It makes a lower low. Correct? And then lower high. So this becomes head and shoulder, right? So this is the last hope. Okay. So market क्या करेगा, पहले आपके होप को शैटर करेगा. ठीक है. And then whatever, anything can happen. And then अगर इंडेक्स आपका वीक है तो इट विल नॉट हेजिटेट टू रीच टिल हियर. इंडेक्स अगर बाउंस कर देगा तो ठीक है, अगेन इट विल ट्राई टू गो अप. बट गड़बड़ हो चुकी है. द पॉइंट इज दैट. ठीक है. सो मैं स्टॉक्स को ऐसे नहीं एनालाइज करता कि ये फलाना लेवल है तो ये रेजिस्टेंस, नहीं, वैसे नहीं. आपको समझना है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है. इफ द स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर स्टिल इंटैक्ट, you do any random trade, you will be profitable. If the strong hands are out from the game, ठीक है, you do best analysis, best trade, still you will make loss. ठीक है. So be with the big fish, be with the sharks and whales of the game, you will automatically end up in on the profitable side. अदानी पावर को लेते हैं. स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करना थोड़ा अलग होता है, उसमें साइकोलॉजिकल एंगल से ज़्यादा आपको सोचना चाहिए. ओके, नॉट जस्ट यू नो दी टिपिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस. ओके, अदानी पावर से, अदानी पावर इज बेरिश. मैंने सी जो लोग ग्रुप में, आपको पता है मैंने क्या कहा है, क्या कहा है मैंने गौतम अदानी के बारे में, प्लीज़ बता दो. पहले एक बार अपडेट करो कि मैंने क्या कहा है गौतम अदानी के बारे में, उसके बाद ही मैं ये स्टॉक लूँगा. आईटीसी, आईटीसी अगेन आई सेड आईटीसी वी आर बुलिश. पापा कितने बार बताऊँ. ITC we are bullish for 300 and 320. हमने इसे वापस यहाँ पे बाय किया है. ठीक है. and we will continue to buy. ITC, सॉरी, हाँ, गौतम अदानी के बारे में. सो गौतम अदानी के बारे में मैंने क्या कहा है कि he will become थर्ड. करेक्ट. और उसके साथ ही मैंने क्या कहा है, जैसे ही वो तीसरा वाला न्यूज़ आएगा सब शेयर बेच के भाग जाना. ठीक है. सो आज 5th हो चुके हैं. सो यू आर गेटिंग देयर, यू आर गेटिंग देयर. बी अलर्ट. ओके, एंजॉय टिल द म्यूजिक लास्ट. टाटा पावर, टाटा पावर आई थिंक बैक टू पवेलियन 250 के आसपास शायद आ चुका है. 247, करेक्ट, यस. ठीक है. नाउ यू सी दिस स्टॉक. अब ये स्टॉक में व्हाट हैज हैपेंड, ये जो वॉल्यूम आया, अगेन सेम सिचुएशन ना, ब्रेकआउट विद अ हाई वॉल्यूम. ठीक है. तो जहां ये आप घुसते हो वहां मैं एग्जिट करता हूँ. राइट. सो यहाँ पे यू सी व्हाट इज द स्टोरी. द स्टोरी इज नॉट somebody has bought here. The story is who has dumped there. ठीक है. So obviously the guy who was buying in all these corrections, he has booked his profit. ठीक है. अब रिटेल क्या करेगा, रिटेल या तो यहाँ पे खाली कर चुका है. ठीक है. या तो रिटेल बेचारा यहाँ पे बाय करके बैठा है. अब प्राइस बहुत नीचे है. सो रिटेल इज नाउ सिटिंग ऑन अ होप ट्रेड. ठीक है. तो अगर आप इसमें होप ट्रेड में हो
तो 236 का एक आखिरी स्टॉप लॉस लगा देना. ओके, दैट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल. आई थिंक मार्केट अगर जैसे निफ्टी कुछ बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं अगर करता है तो इट शुड स्टेज 1 बाउंस बैक, जो कि स्टॉक को 280 के लेवल पे लेके जाएगा. ओवर देयर वी विल सी, क्योंकि इसमें एक गेम ये था कि 200 रुपए से 320 तक की एक जर्नी थी, जिसमें से ये 300 अचीव कर चुका है. सो हमेशा वो लास्ट का जो एक पोर्शन होता है ना, उसे छोड़ देना चाहिए, उसे काउंट नहीं करना चाहिए. ठीक है. अरे भाई, इसको क्या प्रॉब्लम है? प्लीज चेक अगेन आईटीसी चार्ट. क्या क्या चेक करना है? व्हाट इज द मैटर विथ यू? टाटा पावर. हो गया, किसी ने टाटा पावर 32 रुपए में बाई किया है. ओके. टाटा केमिकल. टाटा केमिकल looks like 240 coming. ठीक है, so good for you ना. Why are you irritating me? श्री रेणुका शुगर. ओके. रेणुका शुगर. सी रेणुका शुगर अगेन, शुगर्स में देखो बहुत ज़्यादा जो है ना टू मच हो रहा है. मेरे हिसाब से बाहर निकलो. वी शुड बी आउट. विप्रो. विप्रो. आईटी पैक अगेन. ओके, सो विप्रो हैज ब्रोकन डाउन. बेरिश बेरिश बेरिश. विप्रो इज बेरिश. टाटा केमिकल. टाटा केमिकल्स, लेट मी, आई थिंक yesterday इसको लिया था मैंने एट द सेम करेक्ट केसेस. सो टाटा केमिकल्स इज ओवर बॉस. टाटा केमिकल्स में जर्नी वाज दिस 800 से 1000 के आसपास का. सो इट्स गॉन. टाटा इट विल फॉल टिल 857. ठीक है, इट विल फॉल 857. राइट नाउ बेरिश. This is a very good trade. This is a very good trade. So if it comes at 857, I will definitely try to give a long trade. Okay. एस बी आई अभी बेरिश है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए. एस बी आई बेयर और बेयर क्रॉप साइंस. बेयर क्रॉप साइंस. ओके, बेयर क्रॉप साइंस हैज टेकन रेजिस्टेंस एट द 233 मूविंग एवरेज. बाहर निकल जाओ. इट इज गोइंग टू फॉल. गेल. गेल इंडिया. एनर्जी पैक है. ओके, सो एनर्जी पैक, आई थिंक दिस स्टॉक हैज हिट द टारगेट यार. इसको तो मैंने बताया था अभी 3-4 दिन पहले, मुझे अच्छे से याद है. यस. वाई वाई इसको बताया था? लुक एट दी मंथली चार्ट. ये अपना टारगेट था 172, आई थिंक टारगेट था. करेक्ट. लुक एट दी वीकली चार्ट. ट्रिपल टॉप 172 पे. ट्रिपल टॉप. राइट. सो एग्जिट. डॉक्टर रेड्डीज. Yes, Dr. Reddy's, what a fantastic short call. DLF, what a fantastic short call. You know, the easy trades, the retail never takes. Retail always behave like an ostrich. You know what does an ostrich do? The ostrich hide itself under the soil and it thinks nobody is watching it. Okay, so वो अपने सर को एक होल में छुपा लेता है और पूरी बॉडी उसकी एक्सपोज रहती है. So that is how the retail community works in stock market, except the option sellers. सो डॉक्टर रेड्डीज अगेन बेरिश है, बता चुका हूँ, काफ़ी बेरिश है. सो इट इज़ फॉलिंग नाइसली. 4400 से लगभग ये 300 पॉइंट जो है गिर चुका है इस समय. ये देखो. ठीक है सर, प्लीज सजेस्ट आईटीसी टारगेट व्यू. आई बिलीव यू आर गुड. अरे भाई, भगवान भगवान मत मानो. कल सौदा, आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स वर्क. प्लीज एग्जिट एंड डोंट फॉलो मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके. जो ऐसे लोग बिहेव करते हैं ना, स्केर्ड मनी नेवर मेक्स मनी इन द मार्केट. यू शुड नो फर्स्ट, यू नो, बेसिक्स अबाउट स्टॉक मार्केट. बेसिक्स का आता पता नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में आ जाते हो एंड देन यू स्टार्ट शिटिंग इन योर पैंट. सो डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड. दिस इज अ गेम ऑफ एडल्ट्स. डॉक्टर लाल जो है देखो, ये इनसे बच के रहना, डॉक्टर लाल से. वाई? So head and shoulder pattern just under the moving average resistance. So it is bearish and it can start to drop anytime. So be very careful. Dr. Lal is in a
डाउन ट्रेंड। और क्यों डाउन ट्रेंड में है? उसी रीज़न की वजह से, जैसे नेटफ्लिक्स है, पिज़्ज़ा है, ठीक है। सो द कोविड थीम व्हेन इट एंडेड, ऑल दीज स्टॉक्स, द कोविड स्टॉक्स, दे हैड टू क्रैश। तो डॉक्टर लाल जो है ये बेरिश स्टॉक। सबसे पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करके देखो कि उसका ट्रेंड क्या है। ओके, सो सपोज इफ यू ओपन द वीकली चार्ट, यू कैन क्लियरली सी stock made a top here, a lower low, lower high, and then breach. So what does it mean? It means that stock is in a downtrend. This is typical price action training. First initial topics में ये cover मैंने किया हुआ है, ठीक है। Right now what is it doing? It is taking resistance at 2900. So ये stock bearish है. It's a bearish stock. जुबिलेंट फूड, यस, ये सारे स्टॉक्स खत्म होने वाले हैं। जुबिलेंट फूड वर्क आज जो है 6% डाउन था, ठीक है। लुक एट दैट, लुक एट दैट अगेन 65 डे मूविंग एवरेज। यार जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करके अगर इतना नहीं सीखा है ना, तो मैं क्या बताऊँ। या तो मैं बहुत बेकार टीचर हूँ, ठीक है, या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता, या तो मुझे खुद को कुछ नहीं आता। करेक्ट। सो मेरे 600 650 लाइव सेशंस देखो, इंडिया के किसी भी यूट्यूबर ने उतने लाइव सेशंस नहीं किए हैं। तो उसको देख के आप सोचो कि क्या आता है, नहीं आता है, ठीक है। दीपक फर्टिलाइजर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। कोल इंडिया एनर्जी नेम से बाहर निकलना है बॉस। कल रात की वीडियो लगता है नहीं देखे हैं आप लोग। एक भी दिन मिस करोगे इस मार्केट में, वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक टाइम, ठीक है। एक भी दिन आप लाइव सेशन मिस करोगे एंड गॉन, राइट। सो अब ये जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया में 207 213 का जो है जोन था, टारगेट था, इसको भी मैंने वॉर्न किया था, ठीक है, कि आखिरी के 5-7 रुपए के लिए मत जाओ। नाउ यू आर स्टक। सो यहाँ पे व्हाट इज द ऑप्शन यू हैव? 179 पे ट्रेल करो, होप फॉर वन मोर बाउंस, बट निकल जाना अब, ठीक है। एक्सपेंडिंग वेज फॉर्म, यस करेक्ट। लगता है सब लॉन्ग में फंसेंगे ही ना बॉस, फंसेंगे ही। 8-8 लाख जो सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल है, 5 मिनट के वीडियो डालते हैं, उनको देखो, फंसो और क्या। अभी तो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, ठीक है। सो आई विल बी हियर फॉर मैनी डेकेड्स टू कम। सो यू विल सी कितने लोग फंसेंगे इस मार्केट में। अभी तो बचोगे, अभी नहीं फंसोगे। अभी तो एक अप मूव में सब बचेंगे, फिर सकर्स रैली होगी, उसमें सब हीरो बनेंगे, फिर उसके बाद फंसेंगे। फिर वो जनरेशनल वाला फंसेंगे। जनरेशनल यानी वो पैसा जो कभी आएगा ही नहीं, राइट। ऑल राइट, सो कोल इंडिया, सम सपोर्ट्स, वन बाउंस एंड एग्जिट। 188 पे बाई, जो भी है जहां भी बाई करो, 179 पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। आई आर सी टी सी, इसको मैंने काफ़ी पहले एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक में एक ही बाइंग लेवल है, एंड दैट इज क्वाइट डाउन, दैट वाज समवेयर हियर, आई थिंक, या 600 के आसपास कुछ है ये कैंडल के बॉटम पे, ठीक है। सो इसीलिए इस स्टॉक में जो है ना, मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बीच में इसने स्पाइक दिया था, तो इस समय मैंने कहा था कि अगर आप इसमें लॉन्ग हो तो आप जो है ना इसके आसपास, ये जो है ना 645, इसका स्टॉप लॉस आप रखना, तभी लॉन्ग करना, नहीं तो मत करना। IOLCP, वैभव ग्लोबल, ओके। नाउ सी दिस स्टॉक, बहुत ही एक एक्सेलेंट ये केस स्टडी है। क्यों? ये स्टॉक जो है, इफ यू सी, इस स्टॉक में आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और करंट राइट हैंड साइड में? डू यू सी एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी? राइट, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी क्या है? पहले कैंडल्स की रेंज छोटी थी, अब रेंज बड़ी है, ठीक है, एंड वॉल्यूम्स पंप हो रहे हैं, सो somebody is manipulating the stock. So probably it can go till 600, but I'm not sure, okay, about it. So इसमें हम एक ही चीज़ ये कर सकते हैं कि ये जो जोन है, आप 400 रुपये को स्टॉप लॉस रख दो, होप फॉर द बेस्ट। इफ इट गोज हियर देन एग्जिट, देन डेफिनेटली एग्जिट करना। somebody is manipulating the stock, somebody is definitely manipulating the stock.
आईसीआईसीआई बैंक मैं बेरिश हूँ। चलिए, couple of queries and we will wind up. It becomes very hectic to take everyday live session because आप तो सिर्फ स्टॉक क्वेरीज पूछते हो, मेरे लिए वो 30 से 40 क्वेरीज हो जाते हैं, सो इट्स वेरी हेक्टिक। ओके, आईसीआईसीआई बैंक, डूड आई एम सॉरी डूड कह रहा हूँ, आई एम बेरिश, ठीक है। एंड आई एम लुकिंग एट 706 एज अ डाउन साइड टारगेट, ठीक है। आई एम लुकिंग एट दिस as a target under your 785 785 sort of level। See, ये gap था, okay, and this gap has acted resistance here, so I think till we are below this gap we have a very easy chance to go till 706। We also have this downtrending line, so there is a double whammy over here, so that is the logic। आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। नाउ यू सी, अब मैंने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक बेरिश है, तो भैया मैंने तो आईसीआईसीआई बैंक ऊपर शॉर्ट किया टॉप पे, ठीक है। अब आप यहाँ शॉर्ट करते हो नीचे सेवन। आज किसी ने मैसेज किया 750 पे आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट है, 785 का स्टॉप लॉस, तो मैंने बोला कॉमन सेंस कहाँ है तुम्हारी, ठीक है। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लेके तुम एक ब्लू चिप को खेल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये मार्केट में नए हो, कुछ आइडिया ही नहीं क्या कर रहे हो। सो व्हाट टू से, रेडिंगटन रेडिंगटन, देखो इंपोर्ट वाला मामला है, अभी कुछ नहीं है स्टॉक में, इट्स गोइंग साइडवेज। आई डोंट नो, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया है, सो प्रॉब्ली कुछ मैंने बोला होगा। एनीवेज, सी ये स्टॉक में ना वन थिंग यू कैन डू, okay, one good thing you can do is, stock right now is trading at 155, you keep a stop loss of 130 rupees, okay, you keep a stop loss of 130 rupees, and let's see what happens in coming days, coming week। 130 का stop loss रखो। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं किया ना, तो दिस स्टॉक should actually break out, ठीक है, should actually give a breakout। So I like this chart overall. I like this pump over here, right from the bottom, uh, and then another one pump happened here again. So there are good attempts. Base is nice. 233 moving average is nice. It just needs some support from the market. So you will have to give it some time. So with a 20-point risk, I think it is okay to take a chance. ठीक है, ठीक है सर, आज आपकी आवाज़ लो है, तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। इट्स वेरी हेक्टिक। रिलायंस रिलायंस पे तो निकल जाओ ना यार, रिलायंस तो मैंने लास्ट वीक ही एग्जिट करा दिया था। सो रिलायंस में अभी कोई ट्रेड नहीं है, लेट्स वेट। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बेरिश काउंटर है, ठीक है। एंड या सो 568 से ऑलरेडी रिजेक्शन खा चुका है, सो बेरिश काउंटर है। 486 पे देखना, अगर 486 मिला ना, आई थिंक यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगा, ठीक है। सो आई डोंट नो आपका क्या प्राइस है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, कुछ लिखा नहीं है आपने, सो आई डोंट नो व्हाट यू आर एक्चुअली आस्किंग। IOLCP, ठीक है। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या चीज़ एक्सप्लेन किया? आई एक्सप्लेन दिस सेम स्टॉक, करेक्ट? फिर भी आप लिख रहे हो। अमित, आई विल एक्सप्लेन दिस स्टॉक, ठीक है। ब्रिटानिया आई हैव एक्सप्लेन्ड। अदानी पोर्ट्स किसी ने 856 पे बाई किया है, ओ माय गॉड यार, आप लोग ये सब गलतियां क्यों करते हो? 856 पे, ठीक है भाई साहब, ठीक है। देखो, एक चीज मैं फ्री की ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये होता है सपोर्ट, ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। बाय यहां किया जाता है, एग्जिट यहां किया जाता है, ठीक है, बस।
इतना समझ जाओगे लाइफ बन जाएगी। उल्टा काम करोगे, यानी यहाँ बाय करोगे, यहाँ सेल करोगे, तो उल्टा हो जाएगा। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। नाउ सपोज यू हैव बॉट हियर, प्रॉब्ली आई थिंक आपने ट्विटर या यूट्यूब देखा होगा, वो जो ब्रेकआउट वाले होते हैं। सो यस, इस स्टॉक में अभी भी बहुत स्कोप है, 1000 तक का तो मेरा ही टारगेट है। बट हमारे में और बाकियों में अंतर क्या है, हम भाई यहाँ से बैठे हैं, ठीक है, और हम बैठे नहीं रहते, हम इसको चर्न करते रहते हैं। तो अपने पास एक अच्छा खासा ना बफर क्रिएट हो जाता है, तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई बफर नहीं है, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एट द मोस्ट रॉन्ग लेवल, एनी नी जर्क रिएक्शन एंड यू विल बी ट्रैप्ड। यही गलती आप लोग सब कर रहे हो, यही गलती कर रहे हो। नाउ सपोज अब आपने बाई कर ही लिया, गलती कर ही लिया है, तो डू वन थिंग, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 800 इफ यू कैन अफोर्ड। आई डोंट नो अगर एफ है या क्या है, अगर एफ है तो भैया निकल जाओ। अगर कल गलती से ही थोड़ा गैप अप कर दिया तो ठीक है, अपने कॉस्ट के नीचे आप सेल वगैरह लगा सकते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द द गेम एक्चुअली, कि ये गेम क्या है। सो टेक इट पॉजिटिवली, टेक इट कंस्ट्रक्टिवली, ताकि फ्यूचर में जो है, देखिए गलतियां तो सबसे होंगी, बट कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जो बहुत ही ऑब्वियस वाली चीज है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। नव खुश 38,000 बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय कर रहा है मे का, आपका व्यू। ठीक है, मेरा व्यू देखने के लिए वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, मेरा व्यू दिख जाएगा। प्रॉम्प्टम और क्रॉम्प्टम, प्रॉम्प्टम होना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। यस, वेबो ग्लोबल की तरह, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का क्या ट्रेंड है, क्लियर कट डाउन है, करेक्ट। तो जो डाउन है वो डाउन रहेगा, बेरिश काउंटर। नया लोस तो कभी भी बना, आई थिंक कल ही बना देगा शायद नया लो। MAHSC, महाराष्ट्र स्कूटर्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स। ओके, good one, good one. Why I'm saying good one, because stock is defying the index, so that shows a relative strength. This was a downtrend which got ended over here at a previous support area, which means the demands are still intact. So right now ये अपने बेस से देखो बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। सो सपोज अगर आपने फ्रेश इसको बाई किया है, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस 3700, ओके, 3700 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वेरी नाइस, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक स्कोप है। आई लाइक दिस चार्ट, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव चार्ट, पॉजिटिव चार्ट। लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम द मार्केट विल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस स्टॉक, मतलब ये जाना चाहिए, दिस स्टॉक डिजर्व्स अ हायर लेवल। सो कीप एन आई ऑन 37, 37 इज अ वेरी गुड लेवल, ठीक है। 37 का स्टॉप लॉस के साथ टेक अ चांस। वंस 41 is crossed, I think stock will not stop till 5,000 sort of a level, ठीक है। गुड चार्ट, वेरी गुड। आई एम कंसिस्टेंटली वॉचिंग कि आप जो हैं कहाँ गए। वामसी कृष्णा, यस, वेरी नाइस, यू आर coming up with good stock queries and good charting, very good, वेरी गुड। सो सी आई ट्रैक कि कौन से लोग, जो रेगुलर लोग हैं ना, तो पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे स्टॉक पिक करते हो। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी कम टू नो जस्ट बाय रीडिंग योर मैसेजेस। सबके नहीं, बट जो लोग रेगुलर होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर देते हैं। L&T फूड्स दावत है, L&T फूड्स दावत, ठीक है, दिन की दावत। सो L&T फूड्स देखो, इसको जो है 100 रुपया आ चुका है वैसे साइकोलॉजिकल, तो इसको प्रॉफिट बुक जो है आप करिए, ओके, और 3 मई के पहले निकल जाना, ठीक है। न्यू प्रीवियस ऑल टाइम हाई कितना है इसका, 10, अच्छा 110 है, ठीक है। सो या, सो प्रीटी मच ओवर देयर 110, गिव और टेक 5 रुपया इधर उधर समवेयर, 15 110 एग्जिट, 3 मई के पहले निकल जाना। L&T फूड्स हो चुका है। आशापुरा माइंस 154 पे बाई किया, ठीक है। आशापुरा माइंस इज अ वेरी dear stock to me, entire Ashapura group. So, so आशापुरा माइंस
तो दोस्त ऑलरेडी डबल टॉप बना चुका है, सो इसमें आप निकल जाना चाहिए था। ठीक है, सो एनीवेज अभी ये स्टॉक देखिए नीचे गिरेगा, 117 तक जाएगा। ठीक है, स्टॉक ऑलरेडी डबल टॉप होना चाहिए। सी, इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं, जो ऑफ बीट स्टॉक्स होते हैं, जो थोड़ा जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट्स यू विल कम टू नो कि इनका टेक्सचर क्या है। ऐसे स्टॉक में हमेशा जैसे ही ये प्रीवियस हाइस के पास आते हैं, आपको एग्जिट की तैयारी कर देनी चाहिए। चलिए आखिरी क्वेरी में ले रहा हूँ, ए डब्ल्यू एल। ओ यार, ए डब्ल्यू एल आई ऑलरेडी टेकन, 840 इज कमिंग। लास्ट क्वेरी, रिलैक्सो। दोस्तों आज लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, कमेंट्स भी नहीं हो रहे, सो नेवर माइंड। रिलैक्सो फुटवेयर दोस्त अभी इट्स नॉट एट अ गुड सिचुएशन। ठीक है, सो व्हाई नॉट एट अ गुड सिचुएशन? बिकॉज इट इज below the most important moving average of 233 and 65 and plus this panic bottom over here. So जब तक ये स्टॉक 1170 के नीचे है, स्टॉक बेरिश है। जिस दिन ये स्टॉक ऐसा कुछ करे, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब ये स्टॉक इसको नेगेट करेगा ना, तब जाके इसका ट्रेंड ऊपर होगा। ओके, टिल देन इट कैन कंटिन्यू टू रिमेन इन अ बेयर साइकिल। ओके, टिल देन इट कैन कंटिन्यू टू रिमेन टू डू व्हाट इट हैज बीन डूइंग ऑल दिस वाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर को बुलिश में होने के लिए इसे 1155 के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तब हम कंसिडर करेंगे कि वी हैव अ बॉटम फ्रॉम अ मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एंड नाउ द स्टॉक शुड मेक अ न्यू हाई। और अगर पहला हाई 1450 है, तो कम से कम कोई भी स्टॉक जनरली प्रीवियस हाई से जो है, रिलैक्सो टाइप के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, रिलायंस टाइप के नहीं, कि कम से कम 20-25% ऐड कर देते हैं। सो 1450 प्लस 20% इफ यू ऐड कम्स टू रफली 1800-1900 लेवल्स। तो ये आपके टारगेट बन जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है अबाउट रिलैक्सो। बीईएल के ऑलरेडी टारगेट्स हिट हो चुके हैं। साउथ वेस्ट, यस, साउथ वेस्ट को जो है बोला गया था। साउथ वेस्ट, लेट मी सी, पिनाकल, यस, साउथ वेस्ट पिनाकल, यस। सो this was a good chart actually. Why it was a good chart? Because you see again, ये मैं मेरी स्टूडेंट की क्वेरी है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाई आई सेड आई लाइक दिस चार्ट, बिकॉज अच्छा, मैंने तो आई थिंक एक्सप्लेन भी किया था ना दैट फर्स्ट क्रॉस, सेकंड क्रॉस एंड देन थर्ड शुड बी गुड वन, ट्रायंगल है, स्ट्रक्चर है, सारा चीज। सो या, सो दैट हैज हैपेंड, करेक्ट, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। साउथ वेस्ट हो चुका है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, आई थिंक ये तो कब का उड़ चुका है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी बीच में जो लेवल दिया था, अगले दिन आया था, विच इज दिस, and then it is down. So again, what does this stock tells you? Stock is in a downtrend. Stock has made a buying climax high over here. Look at the volumes, ठीक है, leading up to this, and since then stock is in a downtrend. Now stock is potentially making a larger head and shoulder, you may never know, अभी ये questionable है, but what is the obvious thing, that stock is locked in this range, 400 4100 here and 4500 over there. So बस ये range bound रहेगा। ठीक है, अगर इसमें buy करना चाहते हो, so if you want to play this range, so try to buy as low as possible. Try to buy 4100, keep a stop loss of 100 points. Again, try to book at 4500। इस तरीके से प्ले करो। सो चार्ट को देखो, सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ चार्ट पे। ठीक है, लेवल्स अपने ड्रॉ करो और एकदम क्लोज टू दैट लेवल्स ट्राई टू ट्रेड। दैट्स इट। आखिरी क्वेरी, अंबुजा सीमेंट। सी, सीमेंट पे मैं बहुत पहले से बेरिश हूँ। अभी एक बाउंस बैक हुआ है रिसेंटली, बट आई एम बेरिश ऑन सीमेंट, आई एम बेरिश ऑन आईटी, राइट। सो अंबुजा सीमेंट अभी मैं बेरिश क्यों? बिकॉज अगेन दैट सेम प्रॉब्लम, सेम रेजिस्टेंस वाला चक्कर है। ठीक है, एंड दीज आर ऑल द हर्डल्स। सो जब तक ये स्टॉक 400 के नीचे है ना, okay, it is bearish, and you should try to exit for the moment. Now suppose it has made a generational bottom over here. Even in that case, what the stock will do is it will come back for a secondary move,
probably then it will start the next move. That's how your inverse head and shoulder structures are formed. सो ये स्टॉक इस समय निकलने वाली स्थिति पे है, तो यहाँ से निकलिए और फिर हम देखेंगे इसमें जब कुछ अच्छा एक लेवल पे आएगा तो वापस बाय करेंगे फॉर ए हायर मूव. आई एम बेरिश ऑन दिस स्टॉक. ठीक है, that's it. So that's it. We have conducted 1 hour of live stream. Thank you so much. Wish you all the best. And चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. जिनको भी ट्रेनिंग में जुड़ना है, ग्रुप में आना है, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गुड नाइट.